बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं 92@8 विद सादिया अफजाल। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में ऑब्वियसली बात करेंगे जो महंगाई है जिससे आवाम परेशान है और आज दोबारा से पेट्रोल की कीमतें जो है वो बढ़ा दी गई हैं। दूसरी जानिब PDM की तरफ से एहतजाज है, इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज का फैसला किया गया है। फ़ॉरेन फंडिंग केसेस का जिक्र करेंगे प्रोग्राम में, लेकिन प्रोग्राम का आगाज़ आज हम करेंगे उन इंकशाफात से जो पाकिस्तान में हमारे मीडिया में कई दिनों से चल रहे हैं और हर तरफ, चाहे वो हुकूमत है या अपोजिशन है, उनकी जानिब से उसकी बाज़गश्त जारी है। और वो है ब्रॉडशीट के हवाले से उनके CEO के जो इंकशाफात हमारे सामने आए हैं, जो बातें उन्होंने की हैं और अवाम को ये बताने की कोशिश की है कि हमारी जो एलीट है वो किस तरीके से यहाँ से पैसा लूट कर बाहर लेकर गई। क्योंकि उन्होंने खुद ये कहा कि उनकी जो इन्वेस्टिगेशन है उसमें चीज़ें साबित हुई हैं कि ये स्टोलन मनी थी और किस तरीके से बाहर के ममालिक में असासे बनाए जाते हैं। इस पर वज़ीर आज़म ने यह भी कहा है कि वो इन्वेस्टिगेट करेंगे। दूसरी तरफ जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी है उनकी तरफ से भी ये बात की गई है कि इस मामले को इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। तो हमने सोचा कि आज बहुत सारे ऑब्वियसली इंटरव्यूज़ हो भी रहे हैं उनके, और आज कुछ और चीज़ें जो हैं कुछ नई चीज़ें जो सामने अभी तक आई हैं उनसे पूछ सकें। सो वी आर जॉइंड बाय मिस्टर कावे मुसावी, हु इज़ द CEO of Broadsheet LLC. Thank you very much, Mr. Musavi, for joining us on the show today. And you have been making headlines in Pakistani media lately. Today, I'll try to contain my questions so that you don't have to repeat yourself or you don't have to state what you have stated already. But, it's really good. One thing which I really liked about your previous interviews, where you said that you have this commitment with the Pakistani nation. You have this commitment with the people of Pakistan. And you want us to know that who looted us, who plundered the country, and who made assets abroad, stashed their money abroad. But, one question comes to my mind that, it's really good, it's great that we should know who deceived us and how we were deceived. But why now and why not before? Well, why not before? We were contracted to find the assets of approximately 200 people that they had named, and before we was on the starting block, we began to sense that we were being prevented, and that sense was correct. And very soon the first head of NAB, General Amjad, resigned, and Farooq Adam Khan resigned, and then NAB went downhill from there. Why now is because now the evidence has come out, because beyond a shadow of doubt, a London Court of International Arbitration, a very senior English judge, has heard thousands of hours of evidence and documents, read them, and Pakistan was represented by the leading law firm on the planet on these issues of arbitration. Why now is because right now the decision of Sir Anthony Evans, the former of the Court of Appeal of England and Wales, has come out, and people realize that it is the ultimate rebuttal to all the nonsense that's going out and being put out by the Sharif family and Asif Zardari and all the other thieves who were on the list of the investigation. Secondly, unfortunately, we had to enforce against the government of Pakistan, because this rather foolish man who is in charge of settling this thing, Mr. Shahbaz Akbar, he thought he's in the bazaar trying to trade a carpet rather than obey court orders. And the reason for that is that in itself is a scandal. A government that I know is doing its best under Imran Khan to be law-abiding and doing its best to try to abide by court orders. Unfortunately, the representative plenipotentiary, he came to see me, was more interested in haggling over the price of reducing the court award rather than investigating the $1 billion that I had said have been transferred to Singapore. If this gentleman was willing to show the slightest respect for the rule of law, and I'm giving credit to the new government of Pakistan in that they appear to be genuinely trying, but the performance of this man wasn't exactly stellar when it comes to showing respect for the rule of law. That's my short answer, but if you got a long answer, we can go on into greater detail.
Yeah, okay. Mr. Musavi, you also said in one of your previous interviews that, and you just mentioned him again, that NAB was very cooperative during his tenure and the investigation was going very well, but then he was removed quickly and it just went downhill from there. But you also said that he was very naive to think that he could clean up Pakistan. He wanted a corruption-free Pakistan. But now the man in the driver's seat is Imran Khan. He's the chief executive of this country. He is the prime minister of this country. And he has the same objective. He also wants a corruption-free Pakistan. He also says that, I want this accountability across the board. And what's the difference now? Do you think Imran Khan being in this chair, you think he would succeed? Well, I take my hat off to Imran. He's a Oxford man, and I have no reason to doubt his personal integrity. Yes, I'm hoping that he will succeed, but I know he's walking the minefield being created by he was just the head of one organization, one institution, that was NAB. But Prime Minister Imran Khan, obviously, he's the chief executive. All the institutions are under him now. That's right. I mean, I certainly don't envy the task that he has. He's having to negotiate a political minefield, and at every corner I can see they're going to lay traps for him, and he's got to. I should be pleased to assist in any way I can, but yeah, I don't certainly not underestimate the problems that he's facing, given the nature of the political system. Amjad in the tribunal before Sir Anthony Evans said this country has been plundered by its political elite. A minister yesterday said that it's been, excuse me, please forgive me for saying this, it hasn't been plundered, it's been by this political elite. So Imran has got a very serious problem on his hands, and I wish him all good luck. Yeah. Okay. Prime Minister Imran Khan also tweeted after all these revelations made by you. He said it's just tip of the iceberg, and he also said that we want complete transparency from broadsheet on our elites' money laundering and on who stopped these investigations. So, since PM tweeted this, did anybody from the government contact you, approach you after this whole revelation thing? No. I haven't been contacted by. I've been contacted by individuals that I totally trust, models of human rights integrity. And that's why I must tell you, it's a breath of fresh air. The approaches that I'm getting from the new government, at least through intermediaries that I can totally trust for the integrity, as opposed to the crooks who were being sent like this guy Anjum Dar and Malik and all the rest of it. These are the things. And when I read the Prime Minister's tweets, I think, well, at long last, maybe the people of Pakistan are beginning to get what they deserve in terms of a government that serves rather than a government that steals. I'm hoping that's what it's going to be. Yeah, Prime Minister tweeted this. Then just today, Public Accounts Committee of Pakistan, they also announced that they will also initiate an investigation into the revelations made by you, by your company, and they also directed NAB to declare their contract, what sort of agreement they had with you, and how much was paid for it. I understand that you have been skeptical about this whole thing because of your past experiences, but do you see any silver lining? Because as I said earlier, that what I liked most about your interviews was this one line when you say that this was your commitment with the people of Pakistan and you want us to know what actually happened. So do you see any silver lining? Well, the silver lining is demonstrated by your presence. It's individuals, honest journalists like yourself, who are determined to not let this story go, and they want silver lining is the publicity. The silver lining is the exposure. Sunlight is a very powerful disinfectant. It disinfects corruption. It disinfects the festering wounds that are created by corruption. I'm a human rights lawyer, and I can see the effects of corruption. Corruption means that if the budget of the clean water is stolen,
children start getting all sorts of gastroenteritis and problems. If the budget of the health ministry is stolen, then Pakistani people don't get health. If the budget of the Ministry of Education is stolen, kids have to go and be taught by the kind of people who have no interest in their education. So corruption is a serious human rights issue, and I'm delighted I get the sense. I haven't done this empirically in deep detail because I don't have a contract with the government of Pakistan anymore, but I get a sense that a breath of fresh air is beginning to go through the corridors of power in Pakistan. I hope so that too. But tell me one thing, that what is the current status of your company, Broadsheet? And as you mentioned that 2 companies were set up then. One was to go after Zardari's asset, and one, Broadsheet, was to go after Sharif's family. So what is the current status of these 2 companies? Well, as the judge said, as Sir Anthony Evans said, that the judgment is clear. The government of Pakistan and NAB conspired to defraud. Not my words, his lordship's words. The words of the judge. There was a conspiracy by Pakistan to defraud Broadsheet. So Broadsheet had spent millions of dollars, didn't receive its bills, so he had to go into liquidation. But I was damned if I was going to allow a bunch of thieves to put our asset recovery on behalf of my real employers, who are the people of Pakistan, not the government of Pakistan, not this fraud masquerading as an accountability organization for all these years called NAB. I said to my employers are the people of Pakistan, and I intend to see this through. I intend to see this through so the people of Pakistan, see what's being done in their name, and more importantly, make sure that the stolen assets are back. And so I'm very delighted that this is happening. So Broadsheet at the moment is in liquidation. I personally haven't received any money, but we had to seize some money because somehow the government were unable to get their act together to honor the award. And that's very damaging for the government of Pakistan. I see this breath of fresh air coming from the Imran Khan government. I wish them all success, but they must note that the international markets pay attention to these things. And if a government does not obey court orders, the bond markets take account of that. It's one thing to lend money to someone who's honorable and law-abiding and behaves according to the rules of law. Another one, you have to force them to disgorge what they've taken. And it's best if the government of Pakistan does not create that impression, which was what I was trying to tell Shahzad Akbar when he came to see me. I said, you just mentioned this London High Court's judgment by Judge Anthony Evans, and obviously, as you mentioned, that the judgment also said that your efforts were sabotaged and there was a conspiracy to defraud your company, Broadsheet, and they did everything to disrupt your operations and prevent you from carrying out your duties. But now, is there any way, as you obviously keep mentioning Imran Khan, and you're hopeful that he is in power, he's in charge, and he can, do wonders if he wants, but is there any way that your company now can work with your Oxford friend? Is there any way you could assist his government? Because he wants the same thing. He keeps telling his nation that I want that stolen money back in Pakistan. Well, my employers are the people of Pakistan. It's the people of Pakistan intermediated through a fresh government. I am more than happy to oblige in these circumstances. The reality is that at the moment, we are at the end of a dispute, and I'm more than happy to resume relationships if we have to do that. I'm more than happy to do that. Right. Thank you very much, Mr. Kaveh Musavi, for this today on the show. Thank you.
थैंक यू मिस्टर मसावी। अज़मा बुखारी साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं PMLN से, और सदाकत अली अब्बासी साहब भी मौजूद हैं हमारे साथ, MNA हैं PTI से। आप दोनों को भी खुश आमदीद कहते हैं। आई एम श्योर ऑब्वियसली मिस्टर काबिल मुसावी के बहुत दिनों से जो ये इंकशाफात हैं, कुछ नई चीज़ें उन्होंने इसमें भी बताने की कोशिश की। लेकिन बहरहाल मैं अज़मा साहिबा आपसे एक चीज़ तो सबसे पहले जानना चाहूँगी। ये पैसे हैं, पाकिस्तानियों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, पाकिस्तानी इदारों ने कॉन्ट्रैक्ट किया, हुकूमत ने कॉन्ट्रैक्ट किया, वापस करने हैं। ऑब्वियसली वो ये चीज़ बार बार बता रहे हैं। बट मुझे ये बताएं कि अब पब्लिक अकाउंट्स कमेटी ने भी कहा, वज़ीर आज़म ने भी कहा कि ऑब्वियसली इन्वेस्टिगेशन होनी चाहिए। सो आप कहाँ पे खड़े हैं, आपकी पार्टी इस मामले पे कहाँ पर खड़ी है कि इन्वेस्टिगेशन हो, ये चीज़ें सामने आएँ कि किसने कॉन्ट्रैक्ट किया, कब किया, जो मुख्तलिफ अमाउंट्स बताई जाती हैं कि इतने में सेटलमेंट हो गई, किसके बिहाफ पर हुई, किसने ऑथोराइज़ किया, ये चीज़ें तो सामने आनी चाहिए पाकिस्तानी कौम के। बहुत शुक्रिया सादिया। देखिए, हमारा तो जब के मुसावी साहब ने जो है वो, बल्कि जिस दिन फैसला आया था उसके बाद से ही जो है वो हमारी पार्टी की तरफ से क्लियर स्टांस आ गया था कि हम चाहते हैं कि फैसला जो है वो भी पब्लिक किया जाए, और उसके बाद तमाम चीजें जो इस शहजाद अकबर साहब जो है वो किस किस कैपेसिटी में जो है इनके साथ निगोशिएट करते रहे, क्या निगोशिएट करते रहे, जो ये सारी इस ब्रॉडशीट के साथ जितनी भी चीजें मौजूद हैं 2000 से ऑनवर्ड, वो तमाम चीजें पब्लिक की जाए। हमारा तो पहले दिन से जो है ये स्टांस है, और यकीनन तहकीकात हो, लेकिन इमरान खान साहब की वो चोरी, जो चीनी चोरी है, वो वाली तहकीकात ना होना। जो पेट्रोल के ऊपर जो है वो कमेटी बना के उसकी रिपोर्ट आई, वो वाली जो है वो तहकीकात ना होना। और खुद ही जो है वो रिपोर्ट बना लेते हैं, खुद ही वो लोगों को जो है वो बरीउज़्ज़िमा करार दे देते हैं। बहुत सारी चीजें हैं सादिया इस मुसावी साहब के स्टेटमेंट पे। मैं सुन रही थी अभी मुसावी साहब का, कल रात को उन्होंने एक यूट्यूब चैनल पे इंटरव्यू दिया जिसमें उन्होंने नैब को बहुत, और शहजाद अकबर के बारे में बहुत सख्त जबान भी इस्तेमाल की, और उन्होंने नैब के बारे में बहुत वो किया। लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रहा कि मुसावी वो अभी भी इन्होंने की, अगर आप उस टाइम पे ज्वाइन कर चुकी हों तो वो आपने सुना होगा, पहले सवाल के जवाब में उन्होंने इस तरह की बात की उनके बारे में। अब जो शहजाद अकबर साहब जो है, जो मेन इसमें शख्स हैं, उन्होंने कल भी एक टीवी प्रोग्राम के अंदर उन्होंने कुछ बातें की। एक तो उन्होंने जो है वो ये बिल्कुल कह दिया कि वो जो $1 अरब वाली बात है उसका कोई सबूत मुसावी साहब ने ना दिखाया था ना वो, और उन्होंने जो पूरे इंटरव्यू के अंदर उन्होंने डिस्क्रेडिट करने की कोशिश की मुसावी साहब तमाम बातों, ये कहते हुए भी कि वजीर आजम से मुलाकात नहीं हुई। हालांकि वो आपने देख लिया होगा सोशल मीडिया के ऊपर वो चल भी रहे हैं डॉक्यूमेंट, जिसके अंदर जफर क्यूसी जो है वो इनके बिहाफ में मिलने के लिए आए थे, लेकिन कल उन्होंने डिनाई कर दिया। उन्होंने कहा जी क्यूसी का तो हमें पता ही नहीं था कि वो ब्रॉडशीट की वजह से हमसे मिलने के लिए आ रहा है। हालांकि वो क्लियरली कह रहा है कि वो निगोशिएट कर रहा था नेक्स्ट मुआहदे के लिए। और आज भी जितना मैंने सुन सकी मुसावी साहब को, वो ऐसे ही लगा है कि वो अभी भी वो किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है, और वो नए कॉन्ट्रैक्ट के लिए जो है वो प्लीज करना चाहते हैं हुकूमत पाकिस्तान। आपको लगता है कि किसी नए कॉन्ट्रैक्ट की तलाश में है, लेकिन वो ये भी चाहते हैं कि जी ऑनर नहीं किया पाकिस्तान ने, और ये वो नहीं कह रहे, ये लंदन हाई कोर्ट का जज एंथनी इवंस का अपना फैसला है कि जी नैब की तरफ से ऑनर नहीं किया गया और उनके एफर्ट्स को सबोटाज किया गया। बहरहाल मूविंग ऑन, इसी पे जरा एक कमेंट अब्बासी साहब आपसे भी आ जाए। ये इन्वेस्टिगेशन, जैसे अज़मा बुखारी साहिबा ने भी कहा कि वैसे ना हो जैसे अभी पिछले दिनों में बाकी मामलात की होती आई हैं। वज़ीर आज़म साहब ने कहा है कि ट्रांसपेरेंट हों, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी भी ये बार बार बात करिए कि सारे कॉन्ट्रैक्ट, सारे मामलात आने चाहिए अवाम के सामने। क्या कॉन्ट्रैक्ट था, कितने में सेटलमेंट हुई, किसको पैसे दिए गए, कौन अथॉरिटी था। जी सादिया, बहुत शुक्रिया। ये है, ये होना चाहिए, और हम तो ट्रांसपेरेंसी के कायल हैं, और हमारा लीडर तो सुप्रीम कोर्ट से भुगत के आ गए और उसको सादिक और अमीन डिक्लेयर हुए। असल बात इस सारे मामले में ये है, ये भी तहकीकात होती रहेगी कि मुसावी साहब क्या चाहते हैं और इनका क्या मसला है, लेकिन एक बात तो साबित हो गई कि पाकिस्तान किस तरह के ठगों के पास रहा, और वो 200 लोग जो है जिन्होंने कोशिश की कि वो अंजुम डार के जरिए इनको भी पैसे दें, और वो सारे मामला जो पहले पनामा में आए और यहाँ पे उनको डिफेंड करने की कोशिश की गई। जब पनामा का फैसला आया तो इन्होंने कहा कौन सी करप्शन, कौन से पैसे, कौन से असासे। मरियम साहबा कहती है मेरी यहाँ तो क्या लंदन में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं है। तो सारी चीजें अवाम के सामने आ गई, जो हमारा एक पूरा बयानिया था
कि जरदारी साहब ने, नवाज शरीफ साहब ने मिलके लूटा और 2 जो एनआरओ हुए, ये जो कुछ सारा मामला हुआ, पाकिस्तान को जुर्माना हुआ, इसकी बुनियाद वो एनआरओ था, जो एनआरओ के बाद ये सारी इंक्वायरी, सारे केसेस ड्रॉप किए, और उस ड्रॉप होने के बाद एक तो यहाँ लोगों के अरबों खरबों लोगों के माफ हो गए, और दूसरा इस कंपनी के साथ भी जाहिर है जब दोनों एनआरओ हुए तो इस कंपनी को फिर जाहिर है उनका इंटरेस्ट ही कोई नहीं था कि आप इन्वेस्टिगेशन करनी है या मजीद डिटेल लेनी है, तो वो पाकिस्तान को जुर्माना भी हुआ, लेकिन साथ साथ कम से कम ये बात अब कोई नहीं कह सकता कि मियां साहब बेचारे मासूम हैं। कुछ इंडिविजुअल्स के नाम, वो जो 200 लोगों की फहरिस्त थी जो प्रोवाइड की गई थी, जो टारगेट लिस्ट थी, उसमें से निकाले जाते रहे, उन लोगों को वापस लाकर अकोमोडेट किया जाता रहा। फिर एम्बैरसमेंट पाकिस्तान के लिए अलग कि जब वो लिटिगेशन में गए तो आप जो हैं वो वहाँ पर भी अपने खिलाफ एक फैसला लेकर आ जाते हैं, और जब अपील में जाता है नैब तो ऑब्वियसली उस पर और अरबों रुपए जो हैं पाकिस्तान के खर्च होते हैं। मुझे एक ब्रेक लेने दीजिए, ब्रेक से वापस आएंगे तो कुछ और मामला जिनका जिक्र इंट्रो में किया गया उस हवाले से मेहमानों से बात करेंगे। स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक। प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद। पीटीआई का पीपल्स पार्टी और नून लीग की फॉरेन फंडिंग की तहकीकात के हवाले से रोज़ाना डेली बेसिस पे करने का मुतालबा जो है वो सामने आया है। पीडीएम का जो एहतजाज है इलेक्शन कमीशन के बाहर वो भी 19 तारीख को होने जा रहा है। तो अज़मा बुखारी साहब पहले तो इस पर ज़रा बता दीजिएगा कि इसमें क्या लीडरशिप आपकी सीनियर लीडरशिप जो है वो जा रही है, क्योंकि अभी थोड़ी देर पहले हम देख रहे थे कि बिलावल साहब की तरफ से तो कहा गया कि उन्होंने गालिबन उमरकोट का दौरा करना है, तो वो इस एहतजाज के दौरान इलेक्शन कमीशन के बाहर मौजूद नहीं होंगे उस दिन। सादिया, बिल्कुल हमारी पूरी पीडीएम की लीडरशिप, अगर बिलावल के बारे में मुझे नहीं मालूम, अगर कोई इत्तलात ऐसी होगी तो ये तो पीपल्स पार्टी बता पाएगी, लेकिन मरीम नवाज साहबा जो है खुद इस एहतजाज में शरीक होंगी, मौलाना फजल रहमान साहब भी होंगे, बाकी लीडरशिप भी होगी। अच्छा। तो अगर बिलावल साहब की कोई कमिटमेंट्स है तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन एक जो पिछली दफा पे हम बात कर रहे थे उसमें थोड़ा सा मुझे ऐड करनी है चीज उस इशू को वाइंड अप करते हुए। वो ये है कि मुसावी साहब के वकीला ने एक रिटन लेटर शरीफ फैमिली के लॉयर्स को लिखा, और उसमें उन्होंने कहा कि जो है आप हमें अगर बता दें हुकूमत पाकिस्तान के कौन कौन से एसेट्स हैं और कहाँ कहाँ हैं, तो हमने जो आपकी अटैचमेंट मांगी है एवन फील्ड, वो उससे हम पीछे हट जाएंगे। और उनको रिटर्न जवाब मिला शरीफ फैमिली के वकीला की तरफ से कि आई एम सॉरी, अब जो बात होगी आपसे कोर्ट में होगी। ये भी रिटर्न मौजूद है। नेशनल क्राइम एजेंसी जो है यूके की, वो ऑलरेडी ये एवन फील्ड के हवाले से वो तहकीकात कर चुकी है, और इसलिए हम कह रहे हैं कि आप बराए मेहरबानी लंदन हाई कोर्ट का फैसला ही सिर्फ पब्लिक कर देना, अगर तो बहुत सारी चीजें सामने आ जाएंगी, जिसके अंदर जो यूके हाई कोर्ट है उसने ये कहा कि कॉटन मनी या किसी मनी लॉन्ड्रिंग के पैसे से एवन फील्ड अपार्टमेंट्स जो है वो नहीं खरीदे गए। ये भी शहजाद अकबर साहब की टिप थी जो उन्होंने मुसावी साहब को दी कि आप ऐसा करें कि आप अटैचमेंट मांग ले एवन फील्ड की, आप कहें कि चूंकि इनके खिलाफ फैसला आ गया, ये हुकूमत पाकिस्तान की जायदाद हो गई है इसलिए हमें दे दें, और उसको जो है रिजेक्ट किया है यूके की हाई कोर्ट ने। अब यूके की हाई कोर्ट का मुझे आपको बताने की तो जरूरत नहीं है कि वहां पर जो है वो फैसले ना व्हाट्सएप पे होते हैं, ना टेलीफोन आते हैं, और ना जो है वो कोई वीडियोस। चलिए ये तो अभी आपने कहा कि शहजाद अकबर ये गवर्नमेंट कर रही है, बट इस पे ऑब्वियसली सवाल फिर ये भी उठता है कि 2013 से 2018 तक आप लोगों ने इस पर क्या किया, या उससे पहले जो 5 साल पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी उन लोगों ने क्या किया। अगर ये वाकई मामला इस तरह से था और हुकूमत को एक एम्बैरसमेंट का सामना करना पड़ रहा था, तो इसको उस वक्त क्यों नहीं प्रोब किया गया? इसके हवाले से कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं, एग्रीमेंट्स जो हैं, वो उस वक्त सामने क्यों नहीं आए? उस वक्त उनको पेमेंट क्यों नहीं हुई? मैं बता देती हूँ, मेरा ख्याल है थोड़ा सा इसमें फैक्ट्स को क्लियर करने की जरूरत है। वो ये है कि इनका 2000 में जो मुआहदा हुआ था वो 2007 में रिवोक कर दिया गया था नैब की तरफ से, और रिवोक करने के बाद ये लिटिगेशन में चले गए, और पहले एक फैसला आया, उसके बाद ये अपील में चले गए 2016 के अंदर, और उसके बाद अपील का फैसला जो है वो अब आया है। सो ये एक पूरी लिटिगेशन उस पूरे अरसे के दौरान जो है
वो चलती रही है, जिसके अंदर ब्रॉडशीट जो है जिसने कुछ भी नहीं पाकिस्तान के पैसे वापस करके दिए, लेकिन जाहिर है क्योंकि उनके साथ एग्रीमेंट मुशर्रफ साहब ने बहुत खुशी और एक्साइटमेंट के साथ किया था, तो वो पैसे तो उनको जो है वो देने पड़े। लेकिन यहाँ पर बहुत सारी बातें जो अंडर द लाइंस हैं, जो मसावी साहब कह रहे हैं, जिस तरह से वो नाम ले रहे हैं, उनसे कट मांगे गए, उनसे वो किया गया, और शहजाद अकबर साहब जो है वो इसके अंदर मेन एक वो है। अब उनसे सवाल पूछो तो वो हद तक इज्जत करना उठ देते हैं, लेकिन सवाल तो उनसे पूछा जाएगा, इस तरह तो वो फारिग नहीं हो सकते ना। और आपको पता है इमरान खान साहब कहा करते थे कि ये किसी के बाप का पैसा नहीं है। अब ये 7 अरब रुपया है, ये कोई मतलब छोटी मोटी रकम नहीं है। 4 अरब रुपया जो है वो अटैचमेंट की उसमें जो है वो शक्ल में, और उसके बाद जो है ये जो बाकी पैसे हैं 3 अरब रुपए के करीब, वो लीगल फीस। अंदाजा लगाइए आप कि ये 7 अरब रुपया जो है जो पाकिस्तान की एक्सचेकर को देना पड़ा है, और जो हमारे टैक्स पेयर की मनी है, इनसे सवाल पूछना जाए। आपको ये भी मालूम होगा कि सुप्रीम कोर्ट चले मैं ये आखिरी लाइन कह दूं, सुप्रीम कोर्ट पे जरा मैं एक अगर अज़मा मुझे जरा इजाजत दीजिए, ये जो आपने बात की है, मैं अब्बासी साहब से एक सवाल जरूर करना चाहूंगी, क्योंकि चलें प्रीवियस गवर्नमेंट्स की तो हम बात करते हैं, अब्बासी साहब अभी जो काबिल मुसव्वी भी बात कर रहे थे, बट चलें वो खुद अपोजिशन की पार्टीज अब कहती हैं भाई हम तो बुरे थे, हमने तो कुछ किया नहीं, लेकिन हुकूमत ने क्या किया। और यही सवाल मेरा आपसे कैसेट रिकवरी यूनिट जिसका बार बार जिक्र किया जाता है, जिसको बनाया, स्टोलन मनी आप लेकर आएंगे, असासे जो हैं इस मुल्क के टैक्स पेयर्स का जो पैसा है उसको वापस लेकर आएंगे, क्या कोई रिकवरी हुई? हमें तो कभी कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर ये नहीं बताया जाता कि भाई अब इतने अरब जो हैं उसकी रिकवरी हो गई है और ये बड़ी जल्दी पाकिस्तान वापस आ रहे हैं। सादिया, थोड़ी सी कंफ्यूजन है, शायद ये जो कुछ जुर्माना पाकिस्तान को हुआ है वो ये समझा जा रहा है कि शायद इसमें कोई पीटीआई गवर्नमेंट की कोई नालायकी है या नाअहली है। बताना यह है कि ये केस पहले पूरा प्रोसीडिंग हुई थी। इसकी केस की वजह ये थी कि ब्रॉडशीट ने पहले तो सारी इन्वेस्टिगेशन की, जब इन्वेस्टिगेशन करने के बाद जब पहला एनआरओ हो गया तो नाम ड्रॉप करने पड़ गए, पर जब कोई मुशर्रफ साहब ने भी नाम ड्रॉप किए, फिर जब दूसरा मुशर्रफ साहब के दौर में हुआ, ऑब्वियसली आप लोगों ने नहीं किया, कोई आपको ये नहीं कह रहा कि आप लोगों ने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट किया। मुशर्रफ साहब गए, उन्होंने इस कंपनी को कहा, 200 लोगों की लिस्ट पकड़ा दी गई, बिल्कुल सही कह रहे हैं। जी, दरमियान में जब 2 एनआरओज हुए तो उसके बाद जाहिर है इनका गवर्नमेंट का इंटरेस्ट ही नहीं रहा है, लोगों को तो माफ कर दिया गया, लिहाजा उन बंदों की प्रॉपर्टी पकड़ने का और उनको मजीद प्रोसिक्यूट करने का तो प्रोसेस ही खत्म हो गया, लिहाजा पाकिस्तान केस हार गया। और वो ये तो और ब्रॉडशीट की भी 2 कंपनियां बन गई, एक को इन्होंने गलत वाली को पेमेंट कर दी मुशर्रफ साहब के दौर में, और दूसरी रह गई और वो उसने आके केस कर दिया और वो केस हार गए। हमारे दौर में तो सिर्फ उसकी एग्जीक्यूशन ऑफ द केस चल रहा था, अब केस भी वो क्या था वो सबके सामने आ गया। और अब जो भी मामला है ये रियासत के पैसों की बात है, लेकिन जो उस एनआरओ में पैसे जाया हुए और जो ब्रॉडशीट को, जो पुरानी ब्रॉडशीट जो दूसरी वाली कंपनी है जो उसको पेमेंट हुई, वो भी उन्हीं एनआरओज का शाखसाना था। आज जो ये हम नकम्मे हो गए, हम नाअहल हो गए, हम खराब हो गए, पाकिस्तान डूब गया, इसके पीछे भी तीसरा एनआरओ की डिमांड है, ताकि ये साबित करता है कि वही 200 लोग हैं, वही प्रॉपर्टी है। ये एनआरओ, चले पीएम कहते हैं ना एनआरओ नहीं देंगे, मान लिया वो मुशर्रफ साहब ने एनआरओ दिया था, आप लोग वो वाला एनआरओ नहीं देना चाहते, लेकिन ऑब्वियसली जो चीजें भी मामलात हैं बाहर की अदालतों में वो पाकिस्तान के लिए एम्बैरेसमेंट लेकर आते हैं। और आज ही एक और एम्बैरेसमेंट अब्बासी साहब, जब मलेशिया में पीआईए का तैयारा जो है वो कब्जे में ले लिया गया, इस पे जरा कुछ रोशनी डाल दीजिए। देखिए, मेरे पास एग्जैक्ट इख्तियार है कि मैं लाहौर आया था, मुझे पास डिटेल तो नहीं है, लेकिन जो भी पीआईए के मामलात आउटस्टैंडिंग चल रहे हैं, मैं एग्जैक्टली अपडेटेड नहीं हूं उस बारे में कि ये क्या मामला हुआ, लेकिन ये पूरा पाकिस्तान के सारे इदारों का ये हाल है कि सारा मुल्क लूट के खा गई कोई और हर इदारा जो है वो कर्जे पे और वो उधार पे चल रहा है। तो एग्जैक्टली मैं इस पे कमेंट नहीं करना चाह रहा बिकॉज मैं अपडेटेड नहीं हूं, लेकिन बाकी जो आज का जो इशू है वो ब्रॉडशीट है, और ब्रॉडशीट ही पाकिस्तान की सारी माजी की बैलेंस शीट बता रही है कि पाकिस्तान को किस तरह चलाया गया और किस तरह वो 200 लोग पाकिस्तान को लूट के पैसे मुल्क से बाहर ले जाते रहे। मैं बता देती हूँ सादिया। चलें ठीक है, ब्रॉडशीट से आगे मैं आ जाती हूँ। जी अज़मा साहब, आप कुछ कहना चाह रही हैं? मैं बता देती हूँ। सदाकत अब्बासी साहब को अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर इंफॉर्मेशन नहीं भेजी, जो शहबाज गिल साहब ने ट्वीट भी कर ली है, और वो ये है कि प्यारे भाई, हर एक बात छोड़ डालो और पिछले पर डाल के फारिग नहीं हो सकते। इनका तो हाल ये है व्हाट्सएप में जो है वो इंफॉर्मेशन मिलती है सारी की सारी, वैसे नहीं पता होता कुछ।
लाहौर का कचरा जो है आपको पता है वो भी पिछली हुकूमत में डाल दिया है, पंजाब हुकूमत ने। तो ये बेचारे जो है ना वो इनका एक प्रॉब्लम है, उसी पे रहेंगे, उससे आगे उनको देखना ही नहीं, करना ही नहीं। इसमें गुजारिश ये है कि इनकी जो लीज पेंडिंग थी, हुकूमत पाकिस्तान, नए पाकिस्तान की हुकूमत पाकिस्तान जो है वो कोर्ट में गई और उन्होंने कहा कि जी हमें उन्होंने रिक्वेस्ट की कि हमें ये लीज जो है, क्योंकि कोविड आ गया है, पूरी जो एविएशन की इंडस्ट्री है वो बहुत जो है वो नुकसान का शिकार है, तो हमें इस पे थोड़ा रिलीफ दे दे। और वो उन्होंने नहीं माना, और नहीं मानने के बाद जो है वो हुआ गया है। अब जाहिर है, अब ये देखिए ना, अब गुलाम परवर साहब ने पीआईए पे पाबंदी लगवा दी, वो इदारा तो जो है वो हमने तबाह किया। अब जो रेलवे है उसको जो है वो खसारे पे खसारा उसका बढ़ता जा रहा है, जाहिर है वो हमने कर दिया। जो पीटीवी है उसके ऊपर अपना चहेता लगाया था, जो है उसको हाई कोर्ट ने काम करने से रोक दिया, वो हमने कर दिया। तो ये कब तक छुपेंगे हमारे पीछे? आखिर इनको अपनी बातों का जवाब तो देना पड़ेगा। इस तरह से कौन सा इदारा छोड़ा है इन्होंने जो जिसको ये काम करने के काबिल छोड़ा हो, जो पाकिस्तान के अंदर डिलीवर कर रहा हो? इवन पार्लियामेंट एक सबसे बड़ा इदारा है, वो रिटेंडेंट हो गया है। ये वो पाकिस्तान की पहली पार्लियामेंट है जिसके अंदर ऑपोजिशन पहले से कहती रही, हम आके क्वेश्चन भी करने को तैयार हैं, हमारा इशू पे बैठने के लिए तैयार हैं, हमारा हाथ हाजिर है, लेकिन गरूर और तकब्बुर का आलम ये था कि हम अब हुकूमत कह रही है, करना नहीं चाहते। अब हुकूमत आपको कह रही है कि अब पार्लियामान के फोरम पे मुज़ाकरात करने हैं, एनआरओ के अलावा हर मौजू पर बात करने को तैयार हैं। अब ये हुकूमत का नैरेटिव है। नहीं ठीक है, वो बात ये है कि हम कोई भी बात करें वो एनआरओ हो जाती है, तो इसलिए हमने तय कर लिया कि किसी से बात ही नहीं करनी। वो देखिए ना, आप अभिनंदन वाला इशू, हम इनके साथ बैठे, वजीर आजम गायब, कोविड की बात हो वजीर आजम गायब, जीबी के इलेक्शन हो वजीर आजम गायब, वजीर आजम तो है ही नहीं ना। और पार्लियामेंट के अंदर तो काम हो नहीं सकता। फेटक के ऊपर भी इन्होंने तो किया कुछ नहीं ना, फेटक पे भी बाकी लोगों को मदद करनी पड़ी। नहीं, लेकिन चले आप लोग कहते हैं कि हमने बहुत तय कर लिया, हमने एक ऑलिव ब्रांच इनको दी बार बार पार्लियामान में, ये लोग नहीं माने। लेकिन चलें, आपके एहतजाज के बहाने ही, बकौल आपके, अगर अब ये आ गए हैं पार्लियामान के फोरम पर मुज़ाकरात करने की बात करते हैं तो कर लें, पार्लियामेंट को तो इंपॉर्टेंस मिले। नहीं, हम एनआरओ मांग रहे हैं जी, अब तो मतलब हमने तो बात ही नहीं करनी। और अब हम चाहते हैं कि जैसे जो है इमरान खान ने हमें एनआरओ नहीं देना, इस तरह पाकिस्तान की आवाम ने अगर इमरान खान को एनआरओ नहीं देना, इससे आटे का, चीनी का, बिजली का, अभी बिजली की कीमत में 2 रुपए इजाफा होने जा रहा है। और इमरान खान साहब की कमाल मेहरबानी है, मैंने तो एक ट्वीट भी किया, शहबाज गिल साहब ने कहा कि वो 13 रुपए की जो है वो समरी आई थी, सिर्फ 3 रुपए बढ़ाया है। और आप ये देखिए कि ये 45 रुपए जो पे हमें पेट्रोल दे रहे थे, इस वक्त 68 रुपीज जो लास्ट टाइम जब प्राइस थी पेट्रोल की, उसमें सिर्फ टैक्सेस 68 रुपीज के थे और बाकी जो है वो प्राइस थी। अब आप इससे अंदाजा लगाइए, इस वक्त जो प्राइस पेट्रोल की कर दी है, बिजली की कीमतों में इजाफा, गैस मिल नहीं रही, मुझे एक ब्रेक लेनी है। राइट, मैं पेट्रोल की कीमत में जो इजाफा हुआ है, पेट्रोलियम मसनूआत है, सबकी कीमतों में इजाफा हो गया है और उससे महंगाई भी बढ़ती है, इस पर भी बात करनी है। बस जरा उनका जवाब भी लेंगे, और ये फॉरेन फंडिंग के हवाले से और ये जो पीडीएम का इलेक्शन कमीशन के सामने एहतजाज है उस पर भी बात करेंगे एक वक्फे के बाद। वेलकम बैक प्रोग्राम में एक बार फिर से खुश आमदीद। अब्बासी साहब, पहले तो ये बताइएगा, फॉरेन फंडिंग केस जो है वो बड़े अरसे से चल रहा है। आप लोग कह रहे हैं कि दरखास्त भी ऑब्वियसली चली गई है इलेक्शन कमीशन में आप लोगों की तरफ से कि पीपल्स पार्टी का और नून लीग का ये जो फॉरेन फंडिंग केस है इसको डेली बेसिस पर सुना जाए, जबकि यही सवाल आपसे होता है। वहाँ ऑपोजिशन कहती है कि जी इस हवाले से क्यों अभी तक कोई फैसला नहीं आ रहा और फॉरेन फंडिंग केस से पीटीआई क्यों भाग रही है इलेक्शन कमीशन से? पीटीआई तो अपना केस लड़ रही है और हम वो ऑर्गेनाइज पार्टी हैं जिसका एक एक मेंबर $10 पे करता है, और हमें को 30,000 हमने डोनर्स का डाटा भी दिया है। और एक पीटीआई, वो इमरान खान वो आदमी है जिन्होंने पूरी दुनिया से हमेशा ये फंडिंग पहले शौकत खानम के लिए कराई और उसके बाद पार्टी जो है वो एक मिडिल क्लास लोगों की पार्टी खड़ी की, और उससे बजाय इसलिए कि लोगों को टिकट भेजे जाएं, वो पार्टी के जो मेंबर्स हैं बैरून मुल्क और अंदरून मुल्क वो फंडिंग करते हैं। हम लोग भी अपने बसात के मुताबिक पार्टी को चंदा देते हैं। उस हवाले से पीटीआई वाहिद पार्टी है जिसके पास ऑडिट अकाउंट्स भी हैं,
जिसके पास 40,000 का डाटा इलेक्शन बट आप लोगों की तरफ से भी कहीं ये एतराफ हुआ, ये कहा गया कि ये जो बाहर आपके एजेंट्स हैं उनके तरफ से शायद कोई गलती हुई, तो मतलब आप लोग तस्लीम भी कर रहे हैं एक तरीके से कि ऐसा कहना दुरुस्त है? देखें अगर जब एजेंट से अदालतों में केस जाते हैं तो हमने अपना सारा डॉक्यूमेंट्स दे दिए, बाकी हम अपना पूरा केस लड़ेंगे कि अगर कोई गलती है, कोई अनोमली रह गई है सारे फाइनेंस सिस्टम में, तो उसको हम ठीक करने के लिए तैयार हैं। लेकिन हम चाहते हैं कि इसी तरह से पीपल्स पार्टी, PMLN, JUI, इनकी भी फॉरेन फंडिंग है। इनके तो मुस्लिम लीग नून का तो जो अकाउंट है पार्टी का, वो तो मनी लॉन्ड्रिंग के लिए इस्तेमाल होता रहा। वहां से मियां नवाज शरीफ साहब के जाती अकाउंट में 6 करोड़ रुपया, और वो जैसे बाकी ये मनी लॉन्ड्रिंग करते रहे उसका करते रहे। PTI का तो इमरान खान वैसे ही, सादिक और अमीन, उसके बाद फंडिंग, फॉरेन फंडिंग फॉर शौकत खानम, फंडिंग फॉर PTI, ये तो बड़ी एक फॉर्मल तरीके से हो रही है। अगर किसी जगह पे कोई अनोमली है तो हम समझते हैं कि वो सारी पॉलिटिकल पार्टीज के लिए वंस एंड फॉर ऑल स्कोर सेटल कर दिया जाए। इसीलिए आज फारूक हबीब की जो पिटीशन है उस पर उन्होंने वो डिमांड की है कि यानी सारी पार्टीज के लिए हो जाए, ताकि तमाम वो अवाम को बड़ा अजीब सा लगता है ना जब हम देखते हैं नून लीग और पीपल्स पार्टी कहती है कि जी PTI की जो है फॉरेन फंडिंग उनके शवाहिद मौजूद हैं, और PTI जो है वो कहती है कि हमारे पास जो है वो PMLN की और पीपल्स पार्टी के फॉरेन फंडिंग के शवाहिद मौजूद हैं, लेकिन अपने शवाहिद किसी के पास नहीं। सादिया, हम तो अपना शवाहिद दे रहे हैं, केस लड़ रहे हैं। हम तो हमारी एक बड़ी रिनोन ऑडिट कंपनी से हमारा अकाउंट ऑडिट होता है, उसकी रिपोर्ट जमा होती है, और हमने 30,000 लोगों के ID कार्ड और उनका डाटा दिया है जो पार्टी के लिए फंडिंग करते हैं। और इनके पास तो पैसे ही वो क्या है, ये जो आपके हाउसिंग सोसाइटीज के पैसे इनकी पार्टी के अकाउंट्स में आए हुए। तो हम चाहते हैं कि वंस एंड फॉर ऑल पाकिस्तान में एक ही पैरामीटर पे सारी पॉलिटिकल पार्टीज को चेक किया जाए, और अगर कहीं किसी पार्टी चले अच्छा है फिर तो अज़मा साहिबा तीनों पार्टीज का फैसला फिर इकट्ठे ही हो जाए, ताकि वो जो कह रहे हैं ना कि वंस एंड फॉर ऑल ये मामला जो है ना वो खत्म हो। ये जो इतने अरसे से चीज चल रही है कि भाई कहाँ से पैसा आ रहा है, सारी पार्टीज की फंडिंग कहाँ से हो रही है, तीनों पार्टीज का फिर इकट्ठा हो जाए, इलेक्शन कमीशन इकट्ठा ही फैसला। कितना कन्वीनियंटली आपने कह लिया कि जिनका 2014 से केस चल रहा है, और जिन्होंने 2014 से चलते हुए सादिक और अमीन जो है उसमें जो है 30 मुख्तलिफ अदालतों के अंदर स्टेज लिए, और 80 जो है इसकी पेशियां हुई 6 साल के अंदर, और इसको पोस्टपोन किए रखा, जवाब जमा नहीं करना है। और कल जो जवाब आया, आज मुझे लग रहा है कि अब्बासी साहब लाहौर में काफी मसरूफ रहे हैं, उनको बिल्कुल हकायक का इल्म नहीं है कि उन्होंने कहा क्या है, किया क्या है। अब जो एजेंट्स की बात होती है, आपको पता है वो एजेंट्स क्या है? वो एजेंट्स हैं 2 कंपनियां जिनके थ्रू ये जो पैसे हैं वो इकट्ठे किए गए हैं, और हमारी जो इलेक्शन कमीशन की और पार्टीज एक्ट का जो फंडिंग जो इकट्ठी करने का कानून है उसके मुताबिक अफराद जो है पाकिस्तानी शहरी, उनसे तो फंड लिया जा सकता है, किसी कोई कंपनी या कोई ऑर्गेनाइजेशन जो है वो इस तरह से फंड इकट्ठा नहीं कर सकती। तो ये इसी बात के ऊपर जो है ये फारिग होते हैं, और ये जो इन्होंने मान लिया, जैसे आपने कहा कि वो कोई अगर हुआ होगा तो इमरान खान जो है वो सादिक और अमीन को आप छोड़ दें, बाकी आप किसी पर डाल दें, ऐसे होगा नहीं, इस केस में नहीं हो सकता। और उसकी एक और रीजन है, और वो ये है कि ये कंपनीज जो है एजेंट से कोई गलती हो सकती है। मैं इसीलिए एक्सप्लेन करना चाह रही हूँ कि एजेंट्स शख्स नहीं है, लोग नहीं है, वो एजेंट्स 2 कंपनीज हैं जिन्होंने ये फंड इकट्ठा किया। वो गलत है, और फिर वहां से जो फंड इकट्ठा हुआ है, तो ये इतना सिंपल, इनका तो बहुत ओपन एंड शट केस है, बस जवाब जमा कराने की बात थी। और दूसरी जो इंपॉर्टेंट बात है जिसमें सादिक और अमीन इमरान खान साहब कैसे नहीं आते, वो इसलिए कि ये जो सारे जो कंपनीज थी और ये जो एजेंट्स थे, इनको इमरान खान साहब हेड करते थे, और इसके सिग्नेटरी जो है वो जहांगीर तरीन, इमरान खान, आमिर कियानी और 2 और लोग हैं जो इन फंड्स को जो है यहाँ पर रिसीव करते थे, इस्तेमाल करते थे। तो ये बरीउज़्ज़मा सादिक और अमीन साहब कैसे हो गए? ये हर दफा नहीं होता। वसी तर कौम के मफाद में आपको जो है फेक NOC पे बने हुए गनी गाला के ऊपर आपको बार बार जो है वो सादिक और अमीन डिक्लेयर नहीं किया जाएगा। ये फेक NOC जो है इसके ऊपर बनी गाला पे आपको सादिक और अमीन हुआ, ये भी दोबारा खुलेगा, ये भी पता चलेगा कि अगर कोई फैसला होता है तो हम ये नहीं कहेंगे जो मनी ट्रेन की वो कैसे जो है वो सही साबित हो गई थी। सो ये बड़ा ओपन एंड शट केस है, हम भी अपना जवाब हमने जमा करा दिया। अच्छा, अगर आज निकाल दिया गया, सादिया उम्मीद है एक मिनट आपको कोई डाउट्स हैं अब्बासी साहब के निकाल भी दिया गया, तो आप जो कह रहे हैं कि जी हम ये नहीं कहेंगे मुझे क्यों निकाला, डाउट्स हैं, ऐसे कुछ चांसेस हैं? जी फरमाइए, मुकम्मल कर लीजिए, फिर अब्बासी साहब मैं आपकी तरफ आप इकट्ठा ही जवाब दे दीजिएगा। अब्बासी साहब मैं आती हूँ, अज़मा साहिबा मुकम्मल कर लें। मैं सिर्फ आखिरी लाइन ये कहना चाह रही हूँ
कि पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री में भी और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने कभी इस तरह से फॉरेन फंडिंग रेज की ही नहीं, किसी के अंदर ये कॉन्सेप्ट ही नहीं है जो इमरान खान की चिंता पार्टी करती रही है। सो ये फंड रेजिंग, फॉरेन फंड रेजिंग जो है ये टोटल इनका है, यही उसके ऊपर $1 बिलियन इकट्ठे करते रहे और किसी पॉलिटिकल पार्टी ने ओके, अब्बासी साहब में नहीं किए। रिस्पॉन्ड कर दें जो बात हुई है। दराज से पिछले 22 साल से इसी तरह की फंडिंग करती रही है और फंडिंग हमारा, मैंने जैसे बताया, बड़ा ऑर्गेनाइज हमारा अकाउंट सिस्टम है। अब जो दूसरी बात ये है कि ये मुस्लिम लीग नून की जो तर्जुमान है, इनकी तरफ से अदालतों का और पेशियों का और केसों का हवाला देना ऐसे ही है जैसे मैं ना मानूं। अपनी बारी तो आपको जो सजाएं हुई हैं आपने उनका मजाक उड़ाया, आपके अदालतों की बात करते हैं, कानून की बात करते हैं, आपके जो सरबराह हैं वो अदालतों से भागे हुए हैं, मफरूर हुए हैं, इश्तिहारी हुए हैं, तो किस अखलाकी जवाज के तहत आप पीटीआई की किसी बात का दे सकते हैं? पीटीआई एक लॉ अबाइडिंग पार्टी है। इमरान खान पाकिस्तान के ना सिर्फ सादिक और अमीन है बल्कि सबसे बड़ी डोनेशन इकट्ठे करने वाले हैं। पाकिस्तानी लोग इमरान खान पे इतना एतबार करते हैं कि अरबों रुपए शौकत खानम में आज भी लोग देते हैं और आंखें बंद करके देते हैं। लोग अपनी पूरी जमा पूंजी इमरान खान को देते हैं। और दूसरी तरफ जो है ना सादिक है ना, अगर खा जाते होते ना तो आप पकड़ लेते। आपके भी 20 साल हुकूमत रही है, कोई एक बड़ी कोशिश की ख्वाजा आसिफ ने और दीगर लोगों ने कि शौकत खानम में कोई एनॉमली पकड़े। बहरहाल जो भी है, चलिए मैं लास्टली मुझे अज़मा याद आ गया आपकी मौजूदगी का फायदा उठाते हुए, मरियम औरंगजेब साहिबा के बाद आपको भी तो नोटिस भिजवा दिया शहजाद अकबर साहब ने, तो आपको भी 50 करोड़ का ही मिला। हद तक इज्जत का दावा उन्होंने किया है। जी जी बिल्कुल, मैं इनको 50 पैसे ना दूं, ये 50 करोड़। और देखिए ना उन्होंने खैराती इदारों को देना, क्यों बड़ी गाला जो है चली गई अब कि हमें ये जो है ना हद तक इज्जत मुझे बोलने इस मुल्क की, इस मुल्क के 22 करोड़ आवाम की और उन टैक्स पेयर्स की जिनके पैसे जो है उनकी जेब से निकाल कर ये अपनी कंपनियों को, जिनके अंदर ये कट और शेयर मांग रहे थे अपने साथियों के साथ मिलकर, तो हद तक इज्जत का दावा है वो 22 करोड़ आवाम की शहजाद अकबर को होना चाहिए। अब्बासी साहब वन लाइनर प्लीज, वन लाइनर। वो कह रही है मैं 50 पैसे ना दूं, 50 करोड़ का इज्जत होती है। जी जी इसी तरह करते हैं। सदाकत अब्बासी साहब, अज़मा बुखारी साहिबा, बहुत बहुत शुक्रिया। आई हैव टू वाइंड अप हियर, अनफॉर्चुनेटली टाइम हमारे पास खत्म हो गया है। दैट्स ऑल फॉर टुनाइट, आई विल सी यू टुमारो इंशाल्लाह। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज।